और शिविका, तुमने भी कोई टेस्ट नहीं दिया आज तक? नहीं सर, एक्चुअली मैं बीमार थी इसलिए मैं पिछली क्लास भी अटेंड नहीं कर पाई। और टेस्ट का क्या हुआ? इतने सारे तुमने अभी तक कोई आज तक के कोई टेस्ट नहीं दिया? नहीं सर। हम्म। लास्ट क्लास में मैंने सरफेस टेंशन वो किया था ना, शो विस्कोसिटी। देखो, टेस्ट अगर तुम अवॉइड करोगे तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। यहाँ के टेस्ट में जो भी कम या ज़्यादा मार्क्स आएंगे उससे तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो, तुम्हें पता लग जाएगा ना मैं क्या करना है। सीधा तुम्हें स्कूल का एग्जाम देते हो, वहाँ पे फिर कम मार्क्स आएंगे, तो फायदा क्या है? तुमने विस्कोसिटी शुरू किया था, एंड आई टोल्ड यू अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. So if we have a layer of liquid or a fluid, the upper layer is moving with velocity v, lower layer will be moving with lesser velocity, v minus delta v, and the thickness, the distance is delta x between them. So as such, velocity gradient is change in velocity by distance, and it'll be negative because it's in opposite direction to the friction force. Friction force is acting this way between the two layers, and that is why the negative sign. So friction force between two adjacent layers of a liquid is called viscosity. And this viscous force is also called drag force. Viscous force or drag force is directly proportional to velocity gradient. It is directly proportional to the area of the layer, A's area. And if you club these two, F is proportional to A delta V by delta X, or F is equal to eta A delta V by delta X. So this is Newton's law of viscosity. तो अब तुम ग्रेविटेशन का टेस्ट कब दोगे शिविका? कल दे दो? सर मैं संडे को दे दूं? हाँ, संडे को दे दो. ठीक है सर। तुम लोगों की वजह से मैं टेस्ट चेक करके बाकी का भी रिजल्ट नहीं डाल पा रहा. So eta is coefficient of viscosity, which basically depends upon the nature of the fluid and temperature. Coefficient of viscosity depends upon nature of fluid and temperature. टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी जनरली डिक्रीज होती है. इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, विस्कोसिटी डिक्रीजेस. मतलब लोअर टेम्परेचर पे फ्लूइड्स आर मोर विस्कस, they apply more drag force, but when temperature increases, the drag force or viscous force decreases. यहां से हम कोएफिशिएंट विस्कोसिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं. कैसे करोगे? if area of liquid or fluid layer is 1,
velocity gradient is also 1, then magnitude of force will be equal to viscosity. So we can define coefficient of viscosity of a fluid. कैसे डिफाइन करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी of a fluid, coefficient of viscosity of a fluid equals to equals to magnitude of magnitude of viscous force equals to magnitude of viscous force when area of fluid layer is 1, when area of fluid layer is 1 and its velocity gradient is also 1, and its velocity gradient is also 1. So this is how we define viscosity. अब next question आता है unit and dimensional formula. Unit कैसे find करते हैं? देखो अब जरा. If I neglect the negative sign, eta would be f by a by delta v by delta x. फॉर्मूला को हमने रीअरेंज कर दिया, नेगेटिव साइन को हटा दिया. वी आर फाइंडिंग द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, एसआई यूनिट. एरिया इज मीटर स्क्वायर. डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड बाय मीटर. मीटर मीटर कट जाएगा तो इट विल बी न्यूटन. ये हुआ ना, एफ था एन ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स. मीटर मीटर कट गया, सो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर मीटर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, राइट? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. 1 Newton second per meter square is also called 1 decapoise. Decapoise is also SI unit of viscosity. Deca होता है 10. Decapoise is 1 decapoise is 10 poise. Decapoise is SI unit. Newton second per meter square is also SI unit. Both are SI units. अगर इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? न्यूटन को कन्वर्ट करो डाइन में, 10⁵ डाइन. सेकंड सेकंड रहेगा बाय मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे 10⁴. वॉइस सीजीएस में नहीं होता। पॉइस सीजीएस होता है, यस. डेका पॉइस ऐसा ही होता है. डेका पॉइस एसआई यूनिट and Newton second per meter square is also SI unit. When you convert this into CGS unit, आ जाएगा 10 dyne second per centimeter square, which is 1 poise. तो CGS unit poise हो गया.
विच इज 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेकापोइज हो गया एसआई यूनिट विच इज 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो सीजीएस और एसआई यूनिट में रिलेशन है 10 का। जब भी तुम एसआई यूनिट से सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेसी अगर होता है तो वो होता है 10⁻⁻1, 1/10 होता है। व्हाट अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहाँ से ही आ जाएगा, देखो। ml-1 t-1। न्यूटन इज m1 L1 t-2, second is t-1 L-2, so m1 L-1 t-1. Dimensional formula for coefficient of viscosity is m1 L-1 t-1. असाइनमेंट देखो, इसमें क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, 61 62, असाइनमेंट का 61 62। हम्म स्ट्रेन रेट इज बेसिकली द ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट का दूसरा नाम है स्ट्रेन रेट, डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। एरिया गिवन है हमें, थिकनेस भी गिवन है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है।
हो गया? जिया, दिव्या। हाँ हो गया। फोर्स माइनस साइन के साथ नहीं आएगा। हम्म। फोर्स माइनस साइन के साथ नहीं आएगा। आएगा, बट उन्होंने मैग्नीट्यूड दे दिया होगा, डजंट मेक अ डिफरेंस। करेक्ट तो वही होगा नेगेटिव साइन के साथ, बट दे हैव गिवन द मैग्नीट्यूड। इन्होंने पास्कल सेकंड लिया है, ठीक है, बिकॉज इट वाज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, विच यू कैन राइट एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, तो यू कैन ऑल्सो टेक पास्कल सेकंड एज एसआई यूनिट। डेल्टा वी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करो 5 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड में। सो स्ट्रेन रेट हो गया डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, दैट इज 5 × 10⁻² डिवाइड बाय 2 × 10⁻³ 0.25 मीटर, सॉरी मीटर बाय मीटर, 0.25 पर सेकंड हो गया। स्ट्रेन रेट क्या आ रहा है? स्ट्रेन रेट इज बेसिकली, ऊपर जाके 10 मल्ट ये क्या 25 नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो विल बी 2.5 10⁻⁻1, which is 25 per second. Then second part was friction, drag force. Viscous force is minus eta A delta V by delta x. Eta given था हमें SI unit में 10⁻⁻². Area was 2 square meter and it is 25. तो magnitude wise 0.5 Newton होगा, otherwise minus 0.5. Negative sign signifies the direction. विस्कस ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के या मूवमेंट के ऑपोजिट होता है, दैट इज वाई द नेगेटिव साइन। 62 हो गया। हाँ, द शेयरिंग स्ट्रेन भी वही चीज है। तो फोर्स बाय एरिया हो जाएगा वो F/A। तो F/A कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से? देखो F/A होगा ईटा इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। स्ट्रेस इज ऑलवेज F/A। इस बार इसने क्या दे रखा है? फ्लैट प्लेट ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 kg फोर्स को कन्वर्ट करो न्यूटन में, 9.8 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 kg वेट इज 9.8 न्यूटन। 1 kg weight will be 9.8 Newton. Kg weight is also unit of force.
स्क्वायर प्लेट है तो एरिया हो जाएगा साइड इंटू स्क्वायर कर दो उसको। दिव्या आंसर आ गया। ड्यूरिंग स्ट्रेस तो आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं। अच्छा, सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। आ गया। ठीक। शेयरिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है? 245 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 245 पास्कल है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑल्सो पास्कल, दैट इज। और क्या पूछा था? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए क्या करोगे फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ले लेते हैं फोर्स का, तो नेगेटिव साइन हटा दो। वैसे मैंने एफ बाई ए तो कैलकुलेट किया हुआ ही है ना ऑलरेडी। डेल्टा वी इज 1। बट अगर आप वो नहीं डालोगे तो सब कट जाएगा। 245। अच्छा, ओके। क्या आ रहा है आंसर? 0.98 पास्कल पर सेकंड। हमें एक और यूनिट पढ़ाई थी विस्कोसिटी की। क्या? मुझे उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता, बट वो इसी की तरह थी। क्या हुआ? हमें विस्कोसिटी के लिए एक और यूनिट पढ़ा रहे थे स्कूल में। पॉइज, पास, पास्कल सेकंड, पॉइज। पॉइज से रिलेटेड था बट एग्जैक्टली पॉइज नहीं था। पॉय देखो इटालियन वर्ड है ना इसको, तो वो एस साइलेंट होता है। उसके आगे UILLE था। वो पॉइली था, पॉइजूल्स। वो उसके उसके ऑनर में तो है ही है। फिर ये हमें SI यूनिट और इट्स नॉट एसआई यूनिट, सीजीएस ना, डेका पॉइज एसआई यूनिट है। हमें 1 डेका पॉइज इक्वल टू 1 इतना पड़ा है। हाँ, तो 1 डेका पॉइज है 10 पॉइज, 1 डेका पॉइज इज एसआई यूनिट। 1 डेका पॉइज इज 1 पास, विच इज द एसआई यूनिट। पॉइज इज एसआई यूनिट।
How do we pronounce this? देखो हम तो देसी में बोलेंगे इसको, अपनी लैंग्वेज, हम क्यों इसको गुलामी करेंगे इनकी, पॉइजूली बोलेंगे हम इसको। तो मेंटल स्लेवरी थोड़ी करेंगे अंग्रेजों की हम। वैसे तो वे पॉइल ही होना चाहिए, इटालियन जो भी इनकी अपनी लैंग्वेज है, फ्रेंच है, वट एवर इट इज, हमें क्या करना है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना इन चीज़ों पे। मेरा बस सिलेबस पूरा हिंदी में पढ़ा हूँ, वाई टू यूज इंग्लिश। तो ये हो गया। नेक्स्ट, ये तुमने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। सपोज वी हैव अ लॉन्ग सिलेंडर ऑफ ग्लिसरीन and there's a spherical ball of radius r। इसको ड्रॉप करो उसमें, लिक्विड में। तो इस सिचुएशन में तीन फोर्सेस पे लगेंगे। वैसे तुम्हारे कोर्स में वो नहीं रहा, अपथ्रस्ट और फोर्स बॉयंसी, लेकिन वो यूज होगा यहाँ पे। व्हाट इज अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स? तुमने नोटिस किया होगा कि किसी चीज को हम एयर में लिफ्ट करें, उसी चीज को तुम अगर पानी में लिफ्ट करो या लिक्विड में लिफ्ट करो तो लाइट हो जाता है। उसका रीजन मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, जस्ट टू नो क्यों ऐसा होता है। सपोज आई टेक कंटेनर ऑफ ए लिक्विड, जिसमें एक हम स्फेरिकल बॉल वाटर का ही कंसिडर कर लेते हैं। पानी के कंटेनर में पानी का इमेजिनरी स्फीयर मैंने कंसिडर कर लिया। ये भी पानी है, ये भी वाटर है, ठीक है। तो इसका अपना वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट ऑफ बॉल ऑफ वाटर। तो अब ये बैलेंस कैसे हो रहा है? बिकॉज सराउंडिंग वाटर इस पे फोर्स लगा रहा है ना। सिंस ये इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब सराउंडिंग लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। तो अगर एक लिक्विड के कंटेनर में हम एक वाटर लिक्विड का बॉल कंसिडर करें, वो लिक्विड का बॉल स्टेशनरी है इक्विलिब्रियम में, बिकॉज लिक्विड का वेट सराउंडिंग लिक्विड के फोर्स से बैलेंस हो रहा है। तो सराउंडिंग लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, सराउंडिंग लिक्विड फोर्स लगा रहा है इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल ऑफ वाटर और लिक्विड। अब फॉर अ मोमेंट इमेजिन करो कि हमने इस बॉल ऑफ वाटर को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो क्या होगा, अभी भी उस वैक्यूम की बॉल पे सराउंडिंग वाटर फोर्स लगाएगा W के बराबर। वो कितना था, वेट ऑफ द बॉल ऑफ वाटर, जितना उस बॉल ऑफ वाटर का वेट था। थर्ड सिचुएशन में अज्यूम करो कि इस वैक्यूम को हमने किसी और चीज से फिल कर दिया, स्टील की बॉल से या किसी और बॉल से फिल कर दिया। तो उसका अपना वेट डाउनवर्ड लगेगा, वेट ऑफ द बॉडी, और W ऊपर की तरफ लगेगा। दिस W इज नथिंग बट अपथ्रस्ट, एंड W इज ऑलवेज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हर ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जैसे बलून ऑफ हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो वो राइज क्यों करता है, बिकॉज सराउंडिंग एयर अपने वेट के बराबर ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगाता है, तो उसको ऊपर की तरफ फेंकता है वो। सो दैट्स व्हाई बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन हीलियम राइजेस। लेकिन एयर से फिल्ड राइज नहीं करता, बिकॉज एयर से फिल्ड बलून का अपना वेट और सराउंडिंग एयर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल है। तो दिस इज नथिंग बट अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स, एंड दिस अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स इज ऑलवेज weight of liquid displaced. So FB, any object in any liquid or fluid experiences an upthrust force, force of buoyancy, and this is called upthrust or buoyant force, and it is always equal to weight of the liquid displaced. The buoyant force is always weight of the liquid displaced. तो नॉर्मली जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाते हैं, और जिनकी कम होती है डेंसिटी वो फ्लोट करते हैं, जैसे कि पीस ऑफ कॉर्क फ्लोट, प्लास्टिक वही फ्लोट करता है।
लेकिन अ शिप मेड ऑफ स्टील विल फ्लोट, व्हाई? बिकॉज का शेप ऐसा होता है कि डिस्प्लेसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच बैलेंसेस द वेट ऑफ द शिप। शिप सिंक क्यों नहीं करता? शिप सिंक इसलिए नहीं करता बिकॉज उसका शेप इस तरह से है कि दैट इट इज डिस्प्लेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो जितना वेट शिप का है वो इस वाटर के वेट के बराबर होता है। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होगा? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, एंड इट विल बैलेंस द वेट ऑफ द शिप। जैसे जैसे और तुम इसमें माल रखते जाओगे, सामान रखोगे, शिप थोड़ा सा और सिंक करेगा बिकॉज नाउ इट हैज डिस्प्लेस मोर वाटर। दैट इज व्हाई शिप विल ऑलवेज फ्लोट। The force of buoyancy is always weight of the liquid displaced. तो फोर्स ऑफ buoyancy लग रहा है। दूसरा इस पे एक ड्रैग फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज d, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज rho। तो ड्रैग फोर्स हमेशा एक्ट करता है, इट्स फॉलिंग डाउनवर्ड। ड्रैग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, and this viscous drag force is also directly proportional to the speed of the object. Viscous drag force is always equal to 6 pi eta rv, जिसको हम डायमेंशनली डिराइव भी करेंगे अभी। वो भी 3 मार्क का आ सकता है क्वेश्चन। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स ऑन a sphere of radius r moving inside a liquid of density rho, viscosity eta। तो दिस इज विस्कस ड्रैग फोर्स। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही ड्रैग फोर्स ज्यादा होता है। तुमने देखा होगा जो हाई स्पीड कार्स होती हैं, प्लेन होते हैं, शेप उनकी शेप हमेशा इक्विलाइन होती है, सो दैट इस ड्रैग फोर्स को मिनिमाइज कर पाओ। तो ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा डाउनवर्ड? ग्रेविटी। तो इन द बिगनिंग क्या होता है कि ड्रैग फोर्स प्लस एफ बी, दे आर लेस देन एम जी। इनिशियली जब तुमने उस बॉल को, स्फेयर को ड्रॉप किया, ये सिचुएशन होगी। इसका मतलब नेट फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। जब नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेट करेगा डाउनवर्ड, है ना? सो इट विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड, इट विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड। जब ये एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी, ज्यादा होगी? बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? ड्रैग फोर्स वो भी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। तो ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी टिल यू गेट दिस सिचुएशन दैट एफ डी प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम जी। अगर वो नीचे जा रहा है यस, जा रहे हैं और तो उसको और एफ डी और एफ बी ऊपर लग रहा है तो उसकी और वेलोसिटी नीचे है तो वेलोसिटी कम नहीं होनी चाहिए। एम जी बड़ा है ना। इक्वेशन देखो, 3 फोर्सेस हैं, 2 फोर्स का सम थर्ड फोर्स से छोटा है इन द बिगनिंग। जैसे तुम पैराशूट, जब पैराशूटिस्ट गिरता है ना इनिशियली, तो यही होता है, वो एक्सीलेट जी से गिरता है। जब वो ओपन करता है पैराशूट को, तो उसकी उसका नीचे एक्सेलरेशन फिर भी होता है, फिर एंड में जाके डिसेलरेशन हो जाता है, फिर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होती है। अगर बाई चांस पैराशूट ओपन नहीं हुआ तो वो ग्रेविटी से गिरेगा, सीधा नीचे गिर के ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे वही सिचुएशन हो रहा है कि नीचे वाला फोर्स बड़ा है इन द बिगनिंग, बट जैसे जैसे सिंस डाउनवर्ड फोर्स एम जी ग्रेटर है ना, अगर ये दोनों फोर्स बड़े होते तो ऊपर जाता वो, फिर ड्रैग फोर्स नीचे हो जाता। अगर बाई चांस ये स्फीयर ऊपर जाएगा तो ड्रैग फोर्स फिर नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ड्रैग फोर्स हमेशा ऑपोजिट ऑफ मोशन होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगता है। एम जी बड़ा है इसीलिए एक्सेलेट करेगा डाउनवर्ड, एक्सेलेट करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। अब ये सिचुएशन आगे तो क्या होगा? स्फीयर रुक जाएगा। क्यों? नेट फोर्स तो जीरो हो गया अब। इस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो हो गया, अब क्या होना चाहिए? या यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी।
वेलोसिटी नहीं, जब नेट फोर्स जीरो होता है तो लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा. व्हाट इज इट्स लॉ ऑफ इनर्शिया? इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा ये. डीएक्सेलेट नहीं हो रहा है, सेम स्पीड से करेगा. जो वी थी वही. डीसेलेट का मतलब वी कम डिक्रीज हो रहा है, वी डिक्रीज नहीं हो रहा अब वी कांस्टेंट हो गया. एंड दैट वी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. मुझे एक बात बताओ, सपोज रेनी सीजन में ड्रॉप पानी के ड्रॉपलेट गिरती है ना. वेलोसिटी इनिशियली कितनी होती है? जीरो. जब ये नीचे गिरेंगे तो उनकी स्पीड कितनी होगी? √2gh. मान लो हाइट ऑफ द क्लाउड इज 200 मीटर, वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, 200 मीटर मान लेते हैं. तो मुझे बताओ कितनी स्पीड से वाटर ड्रॉपलेट गिरेगी? 2gh. 2 किलोमीटर ले लो. नहीं, अभी ड्रैग मत लो. तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, है ना. 200 मीटर पर सेकेंड का मतलब है जिस तरह से बुलेट गन से निकलती है उसकी स्पीड से पानी के ड्रॉपलेट गिरेगी. तो अगर कोई बाहर पानी रेनी सीजन में बाहर जाएगा उसका सच में तो छेद हो जाएगा, इतनी स्पीड से पानी गिर रहा है. तो ऐसा होता नहीं एक्चुअली. सिंस एयर इज देयर, ड्रैग फोर्स लगता है. ड्रैग फोर्स लगने से पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट, दे फॉल विद टर्मिनल वेलोसिटी. वो धीरे धीरे गिरती हैं. वरना एक इतनी. हाँ, बोलो. एक पॉइंट के बाद सबकी वेलोसिटी सेम हो जाती है. ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बिकॉज देखो वो डिपेंड करता है ना, वी साइज ऑफ द ड्रॉपलेट पे भी डिपेंड करेगा, हाइट पे भी डिपेंड करेगा, बट यस, कम हो जाती है. इतनी कम हो जाती है ताकि किसी को हार्म ना पहुंचे. क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है? जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो क्या टन्स ऑफ वाटर जो होता है, जो धीरे धीरे गिरता है, इकट्ठा गिर जाता है. तो क्लाउड बर्स्ट में जब पानी धीरे धीरे गिर जाता है 1 घंटे में, वो इकट्ठा जब गिरेगा तो फ्लड आएगा ही आएगा. तो दैट इज द क्लाउड बर्स्ट. तुमने देखा होगा ना वीडियो में, टीवी में, क्लाउड बर्स्ट हुआ वहां पे उत्तराखंड में, वहां पे हो गया तो एकदम से पूरी बाढ़ आ जाती है. ये सपोज रिवर है, माउंटेन एरिया में कभी भी रिवर में, ड्राई रिवर में जाना ही नहीं चाहिए रेनी सीजन में. तुम यहाँ पे बीच में बैठे हो, सब जगह पत्थर है, पानी बहुत कम है. यहाँ मान लो रेन हो गई तो ये पानी बहुत स्पीड से आएगा, और लोग वो फिर फंस जाते हैं बीच में जाके. कि बाय द टाइम दे विल कम आउट ऑफ द रिवर, वो तो पानी तो उनको बहा के ले जाता है. और क्लाउड बर्स्ट में तो बहुत भी बुरा होता है कि सारा का सारा पानी इकट्ठा गिरता है. तो दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी. So velocity obtained after a sphere falls through a distance, and then the sphere is falling with a constant speed. That's constant speed is nothing but terminal velocity, terminal speed. तो इसका हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं. ये तुम्हारा 3 मार्क का डेरिवेशन आएगा टर्मिनल वेलोसिटी का. ये एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ तुमने, ग्लिसरीन का किया है. एक बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, जार होता है, उसमें ग्लिसरीन भरा होता है, उसमें फिर उसमें मार्किंग होती है, यू कैन नो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस. तो तुम उसको स्टॉप वॉच से देखते हो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, तो उससे टर्मिनल स्पीड आ जाती है. एंड देन यू कैलकुलेट. तो अब ड्रैग फोर्स कर लेते हैं. अब पहले एक कहानी सारी लिखो, कौन सी चीज़ क्या है. डी क्या था? डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर. रो क्या है? डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड. देखो वाट जरूरी है पानी हो, ग्लिसरीन भी हो, एयर भी हो सकता है. आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर. ईटा इज coefficient of viscosity of liquid or fluid, surrounding fluid. सारा लिख लो. G is gravity.
अगले साल तो तुम्हारा इस समय रिवीजन चल स्टार्ट हो गया होगा। 12th का रिवीजन हो गया लास्ट 2 वीक से। टेस्ट शुरू हो गए इनके रेगुलर। फेब में तुम्हारे बोर्ड शुरू हो जाते हैं, 17 फेब से। तो अब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ड्रैग फोर्स हो गया 6 पाई ईटा आर वी। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जितना वॉल्यूम स्फेयर का है उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। वेट ऑफ लिक्विड है तो हमें रो से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी रो है, इनटू जी। फोर्स ऑफ बॉयंसी और अब थ्रस्ट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है? स्फेयर और सॉलिड के बॉल के वॉल्यूम के बराबर। वो है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो हो गया मास ऑफ लिक्विड। जी से मल्टीप्लाई किया, फोर्स बन गया। एम जी क्या होगा? एम क्या है? मास ऑफ द स्फेयर। मास ऑफ स्फेयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंटू डेंसिटी ऑफ द स्फेयर विच इज डी इंटू जी। देख लो एक बार शिविका, यहाँ तक कोई डाउट है? क्या चल रहा है शिविका स्कूल में भी? सर अभी सॉलिड्स का चालू किया है। हम्म। आपका 12th में सिलेबस खत्म हो गया? क्या? आपका 12th वाले लोगों के साथ सिलेबस खत्म हो गया? हाँ, लास्ट टू लास्ट वीक खत्म कर दिया था मैंने। अब मैं रिवीजन कर रहा हूँ उनका। रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज शुरू हो गई अब। क्योंकि मोस्टली 15 नवंबर से प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं ना। इसको राइट में ले जाओ। कॉमन ले लो। मास ऑफ द स्फेयर, मास स्फेयर सॉलिड स्फेयर है ना, बॉल स्फेरिकल है, तो इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास इंटू जी। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है। पाई कट जाएगा, एक 2 काट दो, एक आर काट दो। 2/9, हम्म 2/9 समथिंग 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 आ रहा है। हम्म टर्मिनल वेलोसिटी इज 2r² जी डी माइनस रो बाय 6 ईटा। और फ्रॉम हियर यू कैन से दैट v इज प्रोपोर्शनल टू r²। ये भी काम आएगा बहुत। तुम टर्मिनल स्पीड की बात कर रही थी ना, कि टर्मिनल स्पीड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, कि सभी वाटर ड्रॉपलेट की टर्मिनल स्पीड सेम हो गई, डिफरेंट हो गई। सो नाउ यू कैन सी इट विल डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट। अगर बड़ी ड्रॉपलेट है तो उसकी टर्मिनल स्पीड ज़्यादा हो गई। तो v इज प्रोपोर्शनल टू r³ और यहाँ से r भी निकाल सकते हैं हम। r का फॉर्मूला क्या होगा? 9 ईटा v डिवाइड बाय 2g d माइनस रो अंडर रूट। कई बार क्या होता है, d के कंपैरिजन में रो बहुत छोटा होता है, सराउंडिंग एयर है तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इस डेरिवेशन को देख लो एक बार ढंग से, ही आ सकता है। इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम्म
नहीं नहीं, वो एयर बबल में क्या होता है, वो ऊपर आता है। एयर बबल में हम स्फेयर लेंगे एयर को, एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये नेगेटिव आएगा, डी माइनस रू नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज सराउंडिंग हो जाएगा तुम्हारा लिक्विड, सॉलिड हो जाएगा एयर। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा वी, मतलब इट्स राइजिंग। तुमने देखो पानी में एयर बबल राइज करता है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती है। ये फॉर्मूला है ओनली आफ्टर इट गेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। उसके पहले तो एक्सीलरेट ही कर रहा था वो। क्वेश्चन 56 पहले करोगे फिर 55 करोगे। क्वेश्चन 56 एंड देन 55। अगर बहुत कम है, उसकी कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ा तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी, कई बार क्या होता है कि रादर देन गिविंग डेंसिटी टू यू दे गिव यू रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। लिट ये सॉलिड के केस में यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इन केस ऑफ लिक्विड्स वी यूज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी इज यूज फॉर सॉलिड्स। So relative density is density of the material by density of water. सारी क्वांटिटीज देख लिख लो एक बार, उनकी यूनिट्स देख लो क्या है। एयर की डेंसिटी कितनी होती है? एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, वो गिवन है। मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर दी। हाँ तो वो उसको तुम वाटर से मल्टीप्लाई कर दो तो डेंसिटी ऑफ एयर आ जाएगी। If you multiply specific gravity of a fluid by density of water, you'll get its density, density of the liquid. Specific gravity is the same as relative density. Specific gravity is relative density of a liquid. इस क्वेश्चन में 2 बार टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम्म। इस क्वेश्चन में 2 बार टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक बार 56 में। हाँ दो अलग अलग है। एक एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट है ना। दे आर टू पार्ट्स। एक बार वो लिक्विड में राइज कर रहा है, दूसरी बार वाटर में कर रहा है। आराम से कर लो।
डायमीटर दे रखा है, उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लो। विस्कोसिटी ऐसा यूनिट में है ही सही। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है उसने लिक्विड की 0.9, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 900 हो जाएगी उसकी डेंसिटी। एयर की 1000 से मल्टीप्लाई करने में कितनी आ रही है? इन्होंने 1 1.3 ले लो उसको राउंड ऑफ करके। एयर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, उसको तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.3 हो जाएगा, आप राउंड ऑफ करके 1.29 को 1.3 ले लो। लिखा है लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.15 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो जो एयर बबल है उसकी डेंसिटी तो फिर लिक्विड की डेंसिटी से कम एयर होगी। बबल को तुम ट्रीट करोगे सॉलिड स्फीयर की तरह से। तो अंदर एयर है तो मैं डी की जगह एयर का हाँ, डी की जगह एयर लिखोगे 1.3 ले लो उसको। बट फिर एयर का तो छोटा हो गया लिक्विड से, डेंसिटी तो माइनस में चला जाए। हाँ तो तुम घबरा के हो रही हो, माइनस से इतना क्यों घबराना है, तुम्हारे माइनस थोड़ी मार्क्स हो रहे हैं। आंसर माइनस आ रहा है, इसका मतलब वो राइज कर रहा है। माइनस का मतलब है वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, एयर बबल राइज ही तो करता है। एयर बबल राइज क्यों करता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। आर आ गया हमारा 4 × 10⁻⁴मीटर। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड अपने को दे रखा है 0.15 N/m²/s। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की दे रखी है, लिक्विड इज सराउंडिंग, तो रो हो गया 0.9 × 1000, 900 kg/m³ बरोबर है। डेंसिटी ऑफ एयर, एयर बबल की डेंसिटी है 0.001,293 करोगे, डेंसिटी आ गया SI यूनिट में। 0.129 हो गया तो उसको 0.13 ले लो अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला क्या था हमारा v का? 2r² d-ρ × g/9η। कर दो सब्स्टिट्यूट। g को क्या ले रहे हो? नथिंग इज बिन गिवन, 9.8 ले लो। हो गई कैलकुलेशन जिया, शिविका? नाइन इंटू 50 135 होता है।
Negative sign here signifies that it's rising. क्या हुआ दीक्षा? कुछ गड़बड़ है? मेरे में गड़बड़ है, मेरा आंसर हम्म। आंसर बहुत ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर? बहुत गलत आ रहा है। 10⁻8 भी तो आ रहा है। हाँ तो उनका पीछे 10⁻³ में आंसर है। हाँ तो हमारा भी उतना ही आएगा। ये सारा डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 2138। 2 पॉइंट। बस 2138 इंटू 10⁻10, तो नहीं नहीं नहीं, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके बहुत लंबा सा आ रहा है। इतना लंबा आ रहा है, नोटबुक से बाहर निकल गया? नहीं इतना नहीं, फिर बट कितना बताओ? 208 हाँ। 764 पॉइंट टू समथिंग मैंने जीरो नहीं एट आगे लिखा। बोलो। 764 1। पॉइंट मैंने आगे नहीं निकाला इसके। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसके 5 डेसिमल शिफ्ट कर देता हूँ। तो आएगा 2.08 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर है? उधर नहीं, 09 दिया है। हम्म। हो सकता ये इतने यार। इतने आ रहा है, बस खुश हो जाओ। नेगेटिव का मतलब वो राइज कर रहा है। और मिलीमीटर में हो जाएगा 2.08 मिलीमीटर पर सेकेंड। तुमने देखा होगा वाटर बबल, एयर बबल धीरे धीरे राइज करता है। अब सेकंड पार्ट में लिक्विड की जगह डेंसिटी ऑफ वाटर डाल दोगे 1000। फिर सॉल्व कर लो। इन्होंने सेकंड पार्ट का आंसर भी नहीं दिया, हम्म। पीछे सेकंड पार्ट का आंसर भी नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं, तुम लोग तो कर लो, थोड़ा ज्यादा आएगा। देखो कैलकुलेशन से अगर तुम घबराओगे ना। चलो ठीक है, फिर वो दूसरा पार्ट करो, 55 कर लो। क्वेश्चन 55 करो। शिविका हो गया? न्यूमेरिकल से यस सर, घबराना हो ही नहीं गया। होता फिजिक्स में, न्यूमेरिकल से भिड़ जाना होता है। भिड़ जाओ बस, या तो तोड़ दो या टूट जाओ उससे। तो न्यूमेरिकल से जब भिड़ जाओगे तो अपने आप आंसर आएगा। और जो भिड़ गया मतलब वो समझो जीत गया वो, फिर उसको फिजिक्स से कभी डर नहीं लगेगा। अभी भी प्री सबसे जो पहला एग्जाम है वो फिजिक्स ही है देख। वैसे तो फिजिकल एजुकेशन भी है, बट फिजिक्स सबसे पहला हो जाता है, तो सो दैट बच्चों की टेंशन दूर हो जाए। आज अनाउंस हुआ सपोज, तो पूरे 3 महीने फिजिक्स की तैयारी के लिए। सेकंड पेपर फिजिक्स ही है। और फिजिक्स बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। जो आजकल दुनिया में चल रहा है ना, सारा फिजिक्स ही है। वॉर जो चल रहे हैं, मिसाइल्स। आई थिंक उन्हें विस्कोसिटी ऑफ एयर लिखना था और उन्होंने वेलोसिटी ऑफ एयर लिख दिया है। किसमें, 55 में? हाँ। कोई बात नहीं, माफ़ कर दो उसको। ये कंप्यूटर ऑपरेटर साइंस स्टूडेंट नहीं होते ना जनरली। राइट, कर लो 55, कैसे करोगे? जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें बेस्ट क्वेश्चन है ये। इट्स गुड क्वेश्चन, या अभी ऐसा आ भी सकता है।
ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। 57 भी करेंगे हम लोग। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा 55 में? F is equal to 6 pi nRV, eta RV. हाँ, एन मत बोलो, नाराज हो जाएगा वो ईटा, नाम बदल दिया तुमने। विस्कोसिटी है वो, यूनिट से पता लग रहा है। तो फॉर्मूला इज 6 पाई ईटा आर से कर लो। जो वेलोसिटी है ना, विस्कोसिटी है बेसिकली वो। उसको बेसिकली पॉइज में दे रखा है उसको ना, विस्कोसिटी को, तो उसको 10 से डिवाइड कर दो तो डे का पॉइज या ऐसा ही नोट आ जाएगी। जो हमें दे रखा है विस्कोसिटी, वो पॉइज है। सीजीएस में पॉइज होता है, डिवाइडेड बाय 10 विल बिकम डे का पॉइज, और ऐसा ही यूनिट। हम्म। मेरा एक पावर की गलती आ रही है। अच्छा, चेक करो कहाँ गलती हुई है। जब मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो ऐसा यूनिट बन गया ये। तो एफ इज इक्वल टू 6 पाई। पाई को 22/7 का फायदा नहीं है, बिकॉज कुछ कैंसिल नहीं होगा, 3.14 ले लेते हैं। ईटा आर 3 × 10⁻⁴, 0.1 is 10⁻⁻1। 324 into 3.14, 1017.36 आ रहा है। 10, 17.36। तो ये आ रहा है 1.017 10⁻⁻8। क्या आंसर है? आंसर है -6 और मेरा टू द पावर -5 आ रहा है। आंसर -6 है। हाँ, नहीं, मतलब लाइक 1.017 इंटू 10⁻⁻6 है। वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। 0.1 नहीं है? नहीं, अच्छा। जब आपने इसको कन्वर्ट किया सीजीएस से एसआई में तो वो मल्टीप्लाइड बाय 10 नहीं होगा? नहीं होगा, सही कहा तुमने, डिवाइड बाय 10 होगा। ओ, वेलोसिटी 1 थी, तो ये हो जाएगा -10। तो 1.017 10⁻⁻7 आ रहा है। उनका -6 आ रहा है। 1.017 10 की माइनस कितना, 6? हाँ, ये तो नहीं हो सकता। हम्म। तो सीजीएस में आए तो 10⁻⁴ से डिवाइड कर दो तुम, 10⁻⁵ से डिवाइड कर दो तो न्यूटन में आ जाएगा। सीजीएस में कितना आ रहा है?
10⁻5 से डिवाइड करो, 10⁻5 से डिवाइड करो तो ऐसा ही आ जाएगा। डाइन में आ गया ना तुम्हारा, तो डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻5 से डिवाइड करो, तो यही आ रहा है हमारा। तो 0.3 मिलीमीटर था तो उसको मीटर में किया 3 मीटर, 3 × 10⁻⁴। मेरा भी -7 आ रहा है। का 6 पाई एक भी चेक कर लेते हैं। 18 × 10⁻⁵ था ना वाइज, तो 10⁻⁶ हो गया था। 3 × 10⁻⁴, ठीक है। वेलोसिटी 1 है। ये तो आ रहा है, कैलकुलेटर से करके देखो एक बार। -6 आएगा। तुमने रेडियस कितना लिया? जिया तुमने किया? कैलकुलेटर से भी 10⁻⁻7 आ रहा है। -7 ही आ रहा। अभी नहीं कैलकुलेट। हम्म। मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। शिविका, सर अभी कर रही हूँ, वो बीच शौर्य में तुमने किया? गलती हो गई थी तो वापस करना पड़ रहा है, तो वापस कर रही हूँ। तो तुम्हें तो अलाउड है ना, कैलकुलेटर कर लो मोबाइल से। ये आ रहा है। यही है। 57 करो। सर कौन सा करना है इसके बाद? 57। ओके। हम्म। हो गया। मैंने अभी जो डेरिवेशन करा था उसमें लिखवाया था सारा।
देखो बताता हूँ। ये इसको यूज करना है तुम्हें। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स सेम लिक्विड की अगर दो ड्रॉपलेट्स हैं जिनका रेडियस r1 r2 है, तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा? v1 बाय v2 इज इक्वल टू r1 बाय r2 का होल स्क्वायर। तो 8 ड्रॉपलेट्स कंबाइंड हो रही हैं, कोएलेस हो रही हैं, तो उनका हम रेडियस निकाल सकते हैं वॉल्यूम इक्वेट करके। तो रेडियस पता लग जाएगा, रेडियस पता लगते तुम्हें वेलोसिटी पता लग जाएगी। 8 छोटी छोटी ड्रॉपलेट कंबाइन होके एक बड़ी ड्रॉपलेट में क्लब हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, राइट? तो 8 × 4/3 पाई आर क्यूब, r1 क्यूब ले लो, इक्वल टू वन बिग ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस r2। वॉल्यूम इक्वेट कर दिया। तो वॉल्यूम इक्वेट करने पे रिलेशन आ जाएगा, क्यूब रूट कर दो, 2r1 इक्वल टू r2। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। इनिशियल कितना वेलोसिटी है उसका? 0.1। ओके, तो 0.1 v2 में निकालना है। इनिशियल रेडियस r1 है और फाइनल रेडियस r2, r2 इज 2r1। As radius is doubled, it will become 4 times. हम्म, तो 0.4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर 8 ड्रॉपलेट की जगह 1000 ड्रॉपलेट होते तो क्या होता? इसी क्वेश्चन में अगर 8 ड्रॉपलेट के 1000 होती तो 10 टाइम्स हो जाता आर, ये 10 r हो जाता, तो वो 100 टाइम्स हो जाता, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता फिर। तो वी हैव यूज दिस। क्या 12th का सिलेबस हमारे सिलेबस से ज्यादा था? उतना ही है। वो उन 12th में क्या लिंक्ड है कोई? उनके क्लासेस तो जल्दी शुरू होती हैं, 12th की क्लासेस मार्च में शुरू हो जाती हैं। 12th classes I start in March. एक ही आएगा 3 मार्क का क्वेश्चन, द यूजिंग डायमेंशन derived formula for drag force given that force depends upon viscosity, radius of the sphere and the terminal speed. याद है डायमेंशन एनालिसिस? करो ज़्यादा। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस derive the formula for the drag force which depends upon viscosity, radius and the terminal velocity. So we'll take force is equal to some constant k, eta to the power a, r to the power b, v to the power c. Equation 1 where k is dimensionless constant. फिर इनके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दो, क्लब कर लो, कंपेयर करो, टेल मी एबीसी। A equal to 1, B equal to 1, and C equal to ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1। नहीं, बी इक्वल टू 1 कैसे आ रहा है? सभी इक्वल अच्छा टू अच्छा अच्छा, हाँ राइट, ठीक है ठीक है, गुस्सा मत करो। 1। क्या डायमेंशनलेस है?
अब सेम बेस में पावर ऐड कर लो. Now you can compare the powers. इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दो एक की वैल्यू. तीनों वैल्यूज 1 आ गई. So the force is K eta RV. And this is the drawback of dimension analysis, that we can't find the value of the constant. So this constant you can find practical use करके. It comes out to be 6 pi. 6 pi eta RV. इसी तरह से if you have a viscous fluid flowing through a pipe of radius r, pressure gradient P by L, L is the length, P is the pressure difference here and here, then volume of liquid flowing per unit time, velocity of efflux depends upon R, eta and P by L. Question आएगा, derive the formula. Volume of liquid flowing through a pipe of radius R, viscosity eta, pressure gradient P by L. P pressure है, L length है. Derive the formula dimensionally. करना जल्दी से, हो सकता है तो. प्रेशर हो जाएगा फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय एरिया. कर लो, श्योर है ऐसे करना है. पी बाय एल क्या होगा? प्रेशर, प्रेशर होता है m1 L-1 T-2 by L. m1 L-2 T-2 P by L हो जाएगा. हम्म, एक क्या लिया तुमने? आर, आर की पावर. अच्छा, ठीक.
तो वॉल्यूम बाय टाइम will be k times r to the power 4, sorry, r to the power a, eta to the power b, and p by l to the power c. तुमने निकाल ही लिया है। M0 क्यों लिखा?